This is unit number 1, quadratic equations. Exercise 1.3, equations reducible to the quadratic form. In this exercise, we are learning about the equations in that form that are reducible to the quadratic form. Here we have 5 types of equations: first type, second type, third, and 4 and 5. We have 5 types of equations. So all the equations are not given in the standard form of quadratic equation. That is why the topic is equations reducible to quadratic form, यानी हमने इनको reduce करना है to the quadratic equation. ये हमें quadratic form में given नहीं है. So let's start from the first equation, how to solve this type of equations. This is type 1. ax4 plus bx square plus c is equal to 0. In this type, first of all, we find out the lowest power. A variable with lowest power, यानी कि हमने ये चेक करना है कि आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं, one must be greater and other one is lesser. So we put lesser power to anything. हमने जो lesser power वाला वेरिएबल है उसे हम किसी भी चीज़ के इक्वल पुट कर देंगे. आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें from a to z, any alphabet. So here we write x square is equal to y. So we put, or you can say let x square is equal to y. So now here take square on both sides, square on both sides. So let's take a square, x square, square and y square. It becomes x4 and it is y square. So अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास x square को हमने लेट किया y के इक्वल, और सेकेंड हमारे पास जो टर्म है वो आ चुकी है x4. उसका आंसर क्या आया है y square. सो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट के क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे x4 है वहाँ हम पुट करेंगे y square, और जहाँ पे x square है वहाँ हम पुट करेंगे y. Here I put all the values of x square and x4. So now you can see it becomes 2y square minus 11y plus 5. So हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास पावर होती है ग्रेटर वो 2 होती है. तो अगर 2 से इंक्रीज़ हो गई है तो हमने उसको कन्वर्ट करना है 2 में, और उसको अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. नाउ यू कैन चूज़ एनी ऑफ द मेथड्स यू हैव डन इन प्रीवियस क्लास एक्सरसाइजेज. You have done how to solve a quadratic equation in 3 ways. One is factorization method, other one is completing square method, and last is by quadratic formula. So it's up to you which method you are going to use to solve this quadratic equation. Here I am using factorization method. So 2y square minus y plus 5 is equal to 0, and here I put a bracket. You know very well how to solve it by factorization method. Coefficient of y square and the last constant term, it will become 10, and now here we factorize this 10. 2 5s are 10 and 5 2s are 10, and the other one is 10 1s are 10. So these are the factor of 10. Now we are going to take a pair for which is suitable for this 11. So हम कैसे चेक करेंगे कि हम इसमें से एक पेयर लेंगे, उसको प्लस करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर 11 आता है या नहीं आता. सो 5 + 2 7 and 5 - 2 is 3. So both these pairs are not useful for this factorization. So here is 10. 10 plus 1 is equal to 11. So it means this pair is useful for this factorization because it gives us 11. 11 is the factor coefficient of y. So here we write 10 plus 1. The next is 2y square. Multiply this y inside. 10y minus y plus 5 is equal to 0. Now take the 2y common from these both terms. So we will get y minus 5, and here minus 1. Y minus 5 is the answer. So now again y minus 5 are common in both terms. So here remaining are 2y minus 1 is equal to 0. You know the process. Next we are going to put
both brackets is equal to 0. So here 2y minus 1 is equal to 0. Let's find out the answer of y. Here is 5 and here is 1/2. So now we get 2 roots of this क्वेश्चन, बट दिस इज़ नॉट द आंसर, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन जो है वो एक्स वेरिएबल में गिवन है तो हमने आंसर भी उसको एक्स वेरिएबल में ही देना है. ऐसा नहीं है कि हमने वाई की वैल्यूज़ निकाल ली हैं तो हमने उसी में आंसर देना है. वाई हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो यूज़ किया था, हमने खुद से लेट किया था क्वेश्चन ईजीली हम सॉल्व कर सकें. सो अगर क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी हमेशा हम एक्स में ही देंगे, उसके ओरिजिनल वेरिएबल में ही देंगे. सो नाउ हम देखेंगे कि हमने वाई को किसके इक्वल पुट किया था, एक्स स्क्वायर के इक्वल. तो हम यहाँ अब y की जगह दोबारा पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5. और नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 5. सो हेयर वी गेट प्लस माइनस अंडर रूट 5 बिकॉज 5 का अंडर रूट ओपन नहीं होता. हेयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 taking root on both side. So here we get plus minus 1/2 under root. So this is our solution set. So 5 under root and plus minus 1/2 under root is the answer. This is question number 4. X raised power 2/3 plus 54 is equal to 15x raised power 1/3. In this equation, first of all we must arrange this equation, and to arrange this equation we have to find the greatest power and lowest power. So in 2/3 and 1/3, 2/3 is greatest power and 1/3 is lesser power. So let's arrange it. X 2/3 minus 15x 1/3 plus 54 equal to 0. So now this is a arranged form. So now the next step is let put x 1/3 is equal to y, or you can put any variable. So here we are going to take square on both sides. So let's take a square. 2 is equal to वाई स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास पावर के ऊपर 2 पावर्स हैं तो हमें पता है इन दोनों को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई. सो ये क्या बनेगी, 2/3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. सो हियर वी हैव वाई एंड वाई स्क्वायर. वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पर 1/3, तो हम यहाँ एक्स रेज पर 1/3 की जगह पुट करेंगे वाई. एंड हेयर वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज पर 2/3, तो यहाँ हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे. लेट्स पुट द वैल्यूज. सो इट बिकम्स वाई स्क्वायर माइनस 15 y प्लस 54 इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है. इसको अब हम फैक्टराइज करवा लेते हैं. लेट्स फैक्टराइज इट. वी हैव 54 एंड हेयर वी हैव 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. सो लेट्स मेक अ फैक्टर्स ऑफ 54. Figure the factors of 54. So let's find out the perfect factor for our factorization. We have to find the 15 number to sum these pairs or subtract these pairs. So here you can see 6 and 9 is the only pair to make 15. So when you add both numbers it gives us 15. So this is the perfect pair for our factorization. So right here 9 plus 6. So let's start solving this. Multiply this y inside. Minus y, it makes minus 9y and minus 6y plus 54 equal to 0. Take y as common here. So it gives us y minus 9 minus 6 gives us y minus 9 as well is equal to 0. Y minus 9 and y minus 6 is equal to 0. अब हम इसको दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे. y minus 6 is equal to 0. From here we get 9 and from here we get 6.
फाइनली हमारे पास y के दो जो है आगे हैं आंसर्स, लेकिन अभी इनको हमने y की जगह पुट करना है जो हमने लेट किया था। हमने लेट किया था y को x 1/3 के इक्वल, तो हम यहाँ पे x 1/3 राइट करेंगे और यहाँ पे भी हम राइट करेंगे x 1/3 इज इक्वल टू 6। नाउ हियर वी हैव थर्ड रूट, so we know that same root cancel with the same power, so here we take cube on both sides. Take cube on both sides, 1/3 and 3 is equal to 9 raised by 3, and here also 1/3 raised by 3 and 6 raised by 3. So here 3 is cancelled with 3, x is equal to, and when we take cube of 9 it gives us 729, and here also 3 cancelled with 3 we get x, and when we cube 6 it will gives us 216. So we have two answers, and the solution set is 729 and 216. Type 2 of exercise 1.3. In previous we have done type 1, how to solve the type 1 question. So here we have another type A, p of x plus b over p of x is equal to c. In this pattern a, b and c are the constants, and p of x and p of x are polynomials. आप जिसमें देख सकते हैं इस पैटर्न में कि आपके पास यहाँ पे इस कांस्टेंट टर्म के साथ जो भी p of x होगा और जो b के डिनोमिनेटर में p of x यानी कि कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हमने इस इक्वेशन को भी हमने कन्वर्ट करना है टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। अब हमें नज़र आ रहा है कि p of x एंड p of x बोथ आर सेम, तो हम इसको जो है वो लेट कर लेते हैं y के इक्वल। सो y इज इक्वल टू p of x। सो हमने अब क्या करना है, सिंपल स्टेप इसमें ये करना है कि जहाँ p of x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे y। सो हेयर ay प्लस b over y is equal to c. So now take LCM of both fractions. So here is a y square, y से मल्टीप्लाई होगा y square, और यहाँ पे रह जाएगा b is equal to c. Now y multiply with the c, it becomes a y square plus b is equal to c y. अब हमारे पास वो तमाम टर्म्स आ गई हैं जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती हैं, इनको हमने अब क्या करना है, अरेंज कर लेना है। सो ए वाई स्क्वेयर माइनस सी वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कन्वर्ट होगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यानी कि आपके पास इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपने इस प्रोसेस के थ्रू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के आपके ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 में 3 वेज आप लर्न कर चुके हैं। उन तीनों वेज में से कोई भी वे चूज़ करके आप इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आपने देखा ऊपर कि जो पैटर्न हमें गिवन था टाइप 2 का, उसमें हमारे पास यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास नेक्स्ट टर्म में आ रहा है। यानी कि अगर p of x यहाँ पर है तो यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन के लोअर पार्ट में p of x, और जब भी हमारे पास कोई नंबर फ्रैक्शन में आता है तो वो उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह से आएगा कि एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ गिवन होगा, दूसरे का रेसिप्रोकल नेक्स्ट टर्म में गिवन होगा। तो हम जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो है वो टर्म में है x ओवर x माइनस 3, ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब इस एक्सप्रेशन के साथ जो ये a था, इस a की जगह हमारे पास यहाँ पे है 1, ये कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे 1 है। और जो नेक्स्ट टर्म है b ओवर p ऑफ x में, तो b की जगह हमारे पास यहाँ 4 गिवन है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं आप एक और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो हमारे पास ये थोड़ी सी डिफरेंट नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन फॉर्म बिल्कुल वही है कि आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन का नेक्स्ट में रेसिप्रोकल मौजूद है। तो हमने इसमें भी क्या करना है, तो हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस 3। अब हमने देखा कि इस टर्म का रेसिप्रोकल है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, y का भी हम लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा 1 ओवर y। तो 1 ओवर y किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 3 ओवर x के। तो हमने अब फाइंड आउट कर लिया कि हमने कौन कौन सी पुटिंग करनी है वैल्यूज़। तो हमने यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू। फर्स्ट टर्म की जगह हमारे पास आ जाएगा y, और सेकेंड टर्म की जगह आएगा 4 इंटू 1 ओवर y, और लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म इज़ 4। अब इनको सॉल्व करवा लें बाय LCM, इट बिकम्स 4 ओवर y।
सो y इज़ द LCM, ये दोनों y मिलके y स्क्वेयर बनेंगे एंड 4 इज इक्वल टू 4, हियर इट इज़ y स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, अरेंज कर लें इनको, y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0. Now it becomes a standard form of quadratic equation. Let's solve this equation. Here we have y square minus 4 is 4y. So y हम यहाँ राइट करेंगे और साथ में आ जाएगी ब्रैकेट, क्योंकि हमने 4 को फैक्टराइज करवाना है, एंड 4 इज इक्वल टू 0. Here we are going to factorize the quadratic equation, that is y square minus 4y plus 4 is equal to 0. So here are the factors of 4, 2 multiplied by 2 and 4 multiplied by 1. And here is the coefficient of y is 4. So how we get 4? 2 plus 2. When we add this pair, we get 4. So here we write 2 plus 2. So let's solve this. Now you can see I put 2 plus 2 here and then multiply y inside it, minus y with 2 becomes minus 2y, and minus y with 2 also become minus 2y. Then taking y as common and taking 2 as common, it becomes y minus 2 and y minus 2. Putting these two brackets equal to 0, and we get y is equal to 2 and y is also equal to 2. So now here we have two answers, but as I told you before that we can't put the answer, or we can't put the solution set 2 and 2, because these are the values of y, these are not the values of x. So now putting the value of y, we put y is equal to x over x minus 3. So again here we put x over x minus 3 is equal to 2. This is the value of y जो हमने previously let की थी. यहाँ पे अब हमने again y की वही वैल्यू पुट करनी है, यहाँ अलग से और यहाँ पे सेपरेटली हम पुट करेंगे, और अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है. लेकिन अब आप यहाँ पे ये देखें कि y की हमारे पास सेम वैल्यू है, मतलब यहाँ पे भी 2 ही है और यहाँ पर भी 2 ही है, तो हमें इसको 2 दफ़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको 2 टाइम सॉल्व करेंगे आंसर एक ही आएगा आपके पास. सो हम इसको ये वाला पोर्शन हम नहीं करेंगे, हमने जस्ट इसको 1 टाइम ही सॉल्व करना है, तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा. सो लेट्स सॉल्व इट. वी कैन सी x माइनस 3 इज इन डिनोमिनेटर, हम इसको यहाँ ला के 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करवाना है, 2 इंटू x minus 3. So multiply 2 inside the bracket, it becomes 2x minus 6. अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं, तमाम वैल्यूज़ एक साइड पे, इस x को हम इस साइड पे ले जाते हैं तो यहाँ 0 बचेगा. 2x माइनस x माइनस 6, सो x माइनस 6. अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 6. तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना? 6.